شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن شہر شہر گاؤں گاؤں غم حسین علیہ السلام میں سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یوم عاشور پر ماتمی جلوس، کراچی، لاہور، راولپنڈی، سکھر، حیدرآباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت تمام شہروں میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری رہا۔ عزاداران کے لیے نذر و نیاز کا خصوصی اہتمام، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا جلوس حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر، بڑی تعداد میں عزاداران نے شرکت کی۔ لاہور میں گزشتہ رات نثار حویلی سے نکلنے والا جلوس آج کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ پشاور کا مرکزی علم اور ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ آغا مصطفیٰ شاہ پر پہنچ کر ختم۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا جلوس اپنی منزل کی جانب گامزن، جلوس کے بعد مجلس شام غریبہ بپا ہو گئی۔ سندھ اور پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں یوم عاشور کے جلوس اور مجالس، روڑی میں نوڈھالا جلوس 36 گھنٹے بعد ختم۔ ہزاروں عزاداروں کی شرکت، حیدرآباد، سکھر، جیکب آباد، مٹیاری، ٹھٹھہ اور دیگر شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، شیخوپورہ، سرگودا سمیت دیگر اضلاع میں عزاداران نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ مراد جمالی میں بھی 10 محرم الحرام کا جلوس نکالا گیا۔ فضا یا حسین علیہ السلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ اس کردو استور میں جلوس کی گزرگاہوں پر سبیل اور نذر و نیاز کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ یوم عاشور پر کربلائے معلیٰ میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر لاکھوں عزاداران کی حاضری۔ حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پر بھی عزادار جمع، لبیک یا حسین کے نعرے بلند کرتے زائرین۔ کربلا میں ڈھائے گئے مظالم پر نوحہ کناں۔ ایران میں بھی سوگ کی فضا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ارومیہ شہر میں شب عاشور کی مرکزی مجلس عزا میں شرکت کی۔ تہران کے کشور دوست ہال کے باہر شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی یاد میں پرچم لہرایا گیا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشور اسلامی تاریخ کا وہ عظیم دن جس روز امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام نے حق و صداقت کی خاطر عظیم قربانی پیش کی، جس نے کربلا کی مٹی کو مقدس بنایا، کربلا کو معلیٰ بنایا۔ شہدائے کربلا کی قربانی کے بعد اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ یوم عاشور بلا شبہ اسلامی تاریخ کا ایک فکر انگیز دن ہے۔ یہ دن ہمیں صبر، استقامت، ایثار، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر پیغام۔ شہباز شریف نے کہا کہ یوم عاشور اصلاح معاشرہ کے بے مثال اسباق سے روشناس کرواتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اہل ایمان کی کامیابی کے عظیم واقعات کی یاد دہانی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی سر بلندی کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانیاں رہتی دنیا تک مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام، کہتی ہیں کہ شہدائے کربلا اور اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا امام حسین اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت بلاول بھٹو نے کہا کہ یوم عاشور حق، اصول اور جرأت کی فتح کی ابدی علامت ہے۔ قومی سلامتی اور ملکی وقار پر کوئی سودے بازی یا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ GCC ممالک کا بیرونی طاقتوں سے پناہ مانگنا تلخ ترین ستم ظریفی ہے۔ ایران خطے کی اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کا سب سے بڑا خواہش مند ہے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ خلیجی ممالک بیرونی طاقتوں پر انحصار کر کے ماضی کے تلخ تجربات سے سبق سیکھیں، بتائیں ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی؟ خلیجی ممالک میں سینکڑوں ارب ڈالرز کے مہلک ہتھیاروں کے ذخائر کا کوئی دفاعی جواز نہیں۔ صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت پر کیوں خاموش ہیں؟ ایران کو ماضی میں بھی پڑوسی ممالک کی سرزمین سے جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ دفاع وطن کا موروثی حق کسی بھی صورت کسی کے ساتھ سمجھوتے کا موضوع نہیں بن سکتا۔ ابنا ہرمز میں عدم استحکام کے ذمہ دار امریکہ، اسرائیل اور حملوں میں شریک ممالک ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق خطے میں پائیدار سلامتی غیر ملکی مداخلت کے بغیر علاقائی ممالک کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ہرمز میں جہاز رانی عمان کے ساتھ جنگ بندی یادداشت کے مطابق ہوگی۔ خلیجی ممالک پر زور دیا کہ اپنی سرزمین مستقبل میں ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خلیج میں امریکی افواج کی موجودگی خطے میں تقسیم اور عدم استحکام کا باعث ہے۔
ईरान के ऐलान करदा रास्तों से अब नाइट हॉर्मुज़ से गुजरना मुमकिन है। पासदारान इनकलाब का वाज़ेह और दो टूक पैगाम। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से कहा गया कि खत्ते में नाफिज वाहिद कानून अब भी इस्लामी जमहूरिया ईरान और पासदारान इनकलाब की बहरिया का कानून है। ईरान ने हॉर्मुज़ से 4 ऑयल टैंकर्स वापस भेज दिए। इसराइल ने एक बार फिर जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जुनूबी लबनान के सरहदी कस्बे बैते याहून और बराशियत पर फजाई हमले, तोपों और मशीन गनों का भी इस्तेमाल। हिजबुल्लाह के मुताबिक हमलों में 2 अफराद शहीद, 1 जख्मी। 2 मार्च से अब तक लबनान पर इजरायली जारहियत के नतीजे में 4110 से ज्यादा अफराद शहीद, जबकि 12000 से ज्यादा जख्मी हैं। हिजबुल्लाह का लबनान से इजराइल के मुकम्मल इनखला तक हथियार न डालने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा कि तंजीम का सब्र कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। साबित कदमी ही कामयाबी का रास्ता है। दरियाए लतानी के शुमाल में हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाज़ेह किया कि लबनान से इसराइल के मुकम्मल इनखला तक हथियार डालने के मामले पर कोई बात नहीं होगी। वेनेजुएला में हौलनाक जलजले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। 589 अफराद हलाक, 3000 जख्मी, 50,000 लापता। हलाकतें 10,000 से ज्यादा होने का खदशा। जलजले से हर तरफ तबाही के मनाजिर। 70,000 से ज्यादा मुकामी खानदान मुतासर हुए। फिलीपींस की जमीन भी लरज उठी। जनूबी इलाके में जलजले के झटके शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक गहराई 65 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। 3 हफ्ते पहले भी मैनिला में जलजले से 80 अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर ईरान को सोयाबीन और गंदम बेचने का दावा। ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं कि अमरीकी किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केट्स खोल रहे हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। ईरान को ग़िज़ाई अजनास में सख्त मुश्किलात का सामना है। हम ईरानी रकम, गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदने पर जल्द खर्च करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको ने 4 माह बाद तेल की सप्लाई शुरू कर दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के 2 बड़े ऑयल टैंकर्स में रास तनूरा में तेल भरने के काम का आगाज हो चुका है। टर्मिनल 20 लाख बैरल तेल लोड करने की सलाहियत रखता है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल $72 फी बैरल पर आ गया। इटली ने नेटो सरबराह मार्क रूटे के ईरान जंग में अमेरिका की मदद करने का दावा मुस्तरद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक नेटो सरबराह मार्क रूटे के बयान पर अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि ईरान तनाज़े में इटली ने कभी कोई हिस्सा नहीं लिया। इटली ने अमेरिकी फौज को सिर्फ टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी। ईरान जंग में पाकिस्तान का किरदार क़यामत तक याद रखा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि यौम आशूर ऐसे मौके पर आया है जब खित्ते में एक जंग जारी थी। ईरानियों ने सुन्नत हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शोहदा की याद ताज़ा कर दी है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की सुलह करवाई और पूरी उम्मत के सामने सुरखरू हुआ। कुर्बानी से दरेज नहीं करना चाहिए। हमेशा हक और सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। 1300 के करीब जुलूस पूरे सिंध में निकलेंगे और तकरीबन 1650 मजालिस पूरे सिंध में होंगी। कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो ऐसे मौके ढूंढते हैं। हमें किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए बल्कि हमेशा हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सिंध भर में 1300 के करीब जुलूस बरामद होते हैं और 1600 से ज़ायद मजालिस मुनक्किद हुई। कोई ख़तरा नहीं, लेकिन दुश्मन ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। वज़ीर आला सिंध की यौम आशूर के जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया, उन्होंने ताउन किया। डिफेंस में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यौम आशूर पर सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। जुलूसों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए।
MQM पाकिस्तान की क़यादत की कराची में मरकजी जुलूस में शिरकत। सैयद मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस अहमद क़ायम खानी और दीगर मौजूद थे। मरकजी रहनुमाओं के जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया। फारूक सत्तार कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने ये कुर्बानी अदल और इंसाफ का बोलबाला कायम करने के लिए दी। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सच्चाई की ताकत का दर्स देती है। सूबाई इदारों ने अमन कमेटियों के जरिए बेहतरीन इक़दाम किए। 50,000 से ज़ायद सेफ सिटी कैमरों के जरिए निगरानी की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जुलूसों की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि अज़ादारों के लिए हर मुमकिन इंतज़ाम किए। स्प्रे गन से पानी का छिड़काव किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मिसाली अमन पर सबका शुक्रिया अदा किया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा किया। मरकजी जुलूस के इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग ली। DG रेंजर्स ने कहा कि अवाम के इत्तेहाद और हम आहंगी और उलमा कराम की काविशें काबिल तहसीन है। जुलूस के मुंतज़मीन ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को ख़िराज अक़ीदत। कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपना सब कुछ कुर्बान किया। ख़ामनेई ईरानी शहदा के सरदार हैं। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत को कभी नहीं भुलाएंगे। लबनान में यौम आशूरा इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इजरायली फ़ौज के हमले के बावजूद लबनानी बड़ी तादाद में जुलूस में शरीक हैं। बैरूत समेत तराबलस, सैदा, सोर, बालबक, जोनिया, जहला और दीगर शहरों में मातमी जुलूस निकाले गए। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की यौम आशूर पर मजलिस अज़ा में शिरकत। ममदानी ने कहा कि यौम आशूर शहदाए करबला की कुर्बानी याद करने और गौर व फिक्र का दिन है। मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक, सच्चाई और वफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इंसाफ और सच्चाई की अलामत है। कलअदम कमेटी की अवामी हुकूक की आड़ में आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश फिर बेनकाब। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले इश्तिहारी और इंतशारी कमेटी के अनासिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक डडियाल से रावलाकोट असलहा ले जाने वाले कलअदम कमेटी के 2 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद ने इंकशाफ किया कि वो इंतशारी कमेटी के शरपसंद सरगना मेहरान, अमान और नाजिम के लिए काम कर रहे थे। गिरफ्तार शरपसंद नईम ने एतराफ़ किया कि वो पहले भी तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सिब्बी, जोब, कोहलू और बारखान में ज़लज़ले के झटके शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड। गहराई तकरीबन 18 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोहलू से तकरीबन 60 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था। कराची के इलाके मलिक खोखराबाद में माँ और बेटी की लाशें मिलने की तहकीकात। पुलिस ने मुतवफ़्फ़िया सबा के शौहर हनीफ को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद से लगता है खातून ने पहले बच्ची को कत्ल किया, फिर खुदकुशी की। मुतवफ़्फ़िया के शौहर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ बेटे के साथ अपनी बहन के घर गया था। रात भर फ़ोन किए मगर बेटी और बीवी दोनों के मोबाइल फ़ोन बंद मिले। आज सुबह करीब घर से माँ बेटी की फंदा लगी लाशें बरामद हुई थीं। यूरोप में शदीद गर्मी और हीट वेव, हलाकतों की तादाद 300 तक जा पहुंची। शदीद गर्मी से सबसे ज्यादा स्पेन मुतासर। 4 दिनों में ये 212 अफराद जान की बाजी हार गए। फ्रांस में भी हीट वेव की तबाही, मासूम बच्चे समेत 52 अफराद गर्मी के बायस हलाक। पेरिस में गर्मी की शिद्दत के बायस 24 घंटों में हार्ट अटैक के 25 वाकयात। बरतानिया में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों में तशवीशनाक इजाफा। स्विट्जरलैंड में शदीद तरीन गर्मी, 80 साल रिकॉर्ड टूट गया।